din din da din din tak dina di dina dina di dina din tak dina dina katta tak dina din din da din din tak dina katta tak dina. Our next session is Anna Bua Ki Kahaniyan with Zara Mumtaz. Zara Mumtaz is a Pakistani educator, writer and pioneer of children's performing arts. A Connect College at Muna, she has spent decades shaping early education, co-founding Oaks, directing extracurricular program at Beacon House and authoring phonics-based books for Oxford University Press. Over to you, Ma'am Zara. क्या हाल है आप सबका? मैं ख्याल में अगर आप सब आगे आ जाएं, guys over there, तो ज़्यादा दोस्ती और जानकारी का लिहाज होगा. So please do come forward. This is very informal, we'll get together and getting to know you. So if you're closer, I get to know you better. Now, tell me, our Pakistani customs are very particular to our country, and whenever we meet a friend, what do we say? Assalamu alaikum. Now, would you like to sing Assalamu alaikum? Just like we always sing Happy Birthday to you. Well, get to know this song so you can use singing Assalamu alaikum. Let's have it. And please join us. I'll give you the first line and you repeat the second line, okay? It's a little fun game. Yes? Yes, please. Okay. I must say, AI is coming to us so that it could help us. Come on now. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Follow. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Hum to ekum wa alaikum salam. Alaikum wa alaikum salam. हम तो करेंगे अच्छे अच्छे काम. हम तो करेंगे अच्छे अच्छे काम. आपसे सवाल है, how are you? आपसे सवाल है, how are you? हमारा जवाब है, fine thank you. हमारा जवाब है, fine thank you. So I just wanted to bring back memories of the first time that I told stories at KLF, and that was 2010 when KLF itself opened. It was their first day, and I was one of the readers, the storytellers who catered to the children. So I hope you enjoyed all the stories in this book. I think it's available as you leave the hall, and also you can order it on email. I think the address is here. Everything goes on email these days, nothing goes hand to hand. So, now storytelling is a very old tradition of Pakistan, not only Pakistan but the whole of South Asia. Don't you think? There's the Chinese nightingale and the Japanese following birds, and a huge lot of them. And when I showed these pictures to a friend of mine,
who was sitting beside me in the hall, she had a good laugh. She said, all these pictures are so funny. I hope you find them funny too. And the important thing is that the people in these pictures are wearing Pakistani clothes, not frocks and not boxers and not jeans. So isn't that a good thing? You can send it to your friends living abroad and enjoy it with your friends here. Now today's story is called Sugar Baby. That's right. It's a great compliment if you call somebody sugar. It means neat and tidy and efficient, right? So that's the impression you want to give, don't you, if you go abroad or visit a friend, even in Pakistan. So that's her story. And her name, she was a very pretty little girl, very beautiful, very pleasant to look at, and her parents, they really loved her because she was the only child. They loved her so much that they wouldn't let her out of their sight. उन्होंने इतना उसको लाड प्यार से रखा था कि उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उसे स्कूल भी नहीं जाने देते थे. Oh, what a big gap in her life, don't you think? Not to go to school ever. So when she grew into her teens maybe, and people started making fun of her that you can't read, you can't write, तो एक खातून आई, एक साहिबा, उनकी अम्मी के पास और कहने लगी, बेगम साहब मैं एक बहुत अच्छी उस्तानी जी को जानती हूँ, आप न भेजिए अपनी बच्ची को घर से बाहर, उस्तानी जी आपके घर आ जाएंगी और वो घर पे उसे पढ़ा देंगी. तो बच्ची की अम्मा बहुत खुश हुए, कहा हाँ ये अच्छा रहेगा, तो आप फौरन इसका इंतजाम करिए. तो भाई एक दो दिन में उस्तानी जी आए और सबसे पहले उन्होंने बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी देर में बहुत शर्मीली आवाज में धीमे से उसने कहा, टॉसर. टॉसर, ये क्या नाम हुआ? मैंने तो कभी नहीं सुना. ये बेटा कुछ और होगा तुम्हारा नाम, टॉसर तो कोई नाम नहीं है. क्यों नहीं, मेरे पास वाले घर में रहते हैं टलीम और उसके बाद घर में रहते हैं टबीर और मेरा नाम है टॉसर. तो आपके क्या ख्याल है, वो कौन से लफ्ज़ गलत कह रही थी? उसे काफ कहने में मुश्किल आती थी. तो सानी जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, बेटा ये पढ़ो, ये रैन पे काफ. अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुमने सुना नहीं? बहुत टाप 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 टाप. वो बोली टाप टाप टाप. उस्तानी जी ने क्या है तुम्हें बच्ची, तुम सुनती नहीं हो, ध्यान नहीं देती हो. मैं कह रही हूँ काफ और तुम कह रही हो टाप. ठीक से बोलो ना. मैं कह तो नहीं हूँ टाप टाप टाप, आपको नहीं समझ में आती मेरी बात. तो सानी जी had a good laugh and she told the parents, चलो ठीक है आप इसे घर ही में पढ़ाते रहिए और मैं रोज आ जाया करूँगी और बच्ची की भी मदद करूँगी. टॉसर नहीं कौसर. और उसे ठीक से पढ़ना लिखना सिखा दूँगी. अच्छा भाई, अब टॉसर के घर में तो ये हो रहा था. उधर एक दूसरे शहर में जो पास ही था, मगर एक छोटी सी बस्ती थी, कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस गांव से थोड़ा ही बड़ा था. तो उस छोटे शहर में रहता था एक सौदागर. सौदागर को अब हम लोग कहते हैं जैसे शॉपकीपर, ठीक है ना. आप जाते हैं Dorman Mall, Gulshan Mall, this, that and the other mall, and everywhere you see shopkeepers. And what is their job?
to sell you all the lovely things they have. And what is the shopkeeper's job? The saudagar? He buys the things they have from the shop and takes it back to his hometown. So he was a very popular guy. And people would come often to his shop, especially when there was a birthday, किसी की सालगिरह, किसी को तोहफा देना है, कोई बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है, आपका दोस्त या आपके कजन आए हैं विजिट करने, तो तोहफा देना तो लाजिम है। तो भाई इस तरह सौदागर साहब की पूरे छोटे से शहर में सब लोगों से दोस्ती थी, सबसे मिलना जुलना था। He was a very popular guy. तो अब एक दिन वो अपने घर से गायब हो गया और सब लोग हैरान थे, अरे कल तो इन्हें देखा था, आज कहाँ गायब हो गए। खैर कोई काम होगा, चलो जमाना होगा, आ जाएंगे। एक मोटर आई है, लंबी काली मोटर, और उसके ऊपर फूल ही फूल, शीशों में फूल, दरवाजे पे फूल, आगे बॉनेट पे फूल, पीछे डिक्की पे फूल। आपके ख्याल में वो कैसी मोटर थी, उसमें कौन होगा, वो क्यों इतना सजी हुई थी? जीवे बनरा मेरे हजारियां, जीवे बनरा। Everybody was singing that song and making a nice procession, and so the शहर वाले भी मूड में आ गए और खूब गाए बजाए चारों तरफ उस काली मोटर के, और फिर बड़े दोस्ताना और खुलूस के मूड में गए, दरवाजा खोला और दुल्हन को वेलकम किया और क्या गाया, हैप्पी वेलकम टू यू, हैप्पी वेलकम टू यू, हैप्पी वेलकम, हैप्पी वेलकम, हैप्पी वेलकम टू यू, yay! Come on, give it a nice warm welcome. So all the neighbors gathered around and took her into her own home and told her that this is where she's going to be living. Now, that girl was Tosser. So what do you think? Did she get any idea about what was expected of her, what she was going to do, what her life was going to be like? Not at all. She thought it would just be fun and games and singing and dancing and flowers and food. Oh, well, anyway, she was made welcome. And the next day, सौदागर साहब ने कहा, देखो कौसर बीबी, अब मुझे बड़े शहर में जाना है कुछ सामान लेने के लिए, यही मेरा पेशा है, यही मेरा काम है, बड़े शहर से चीजें लाके छोटे शहरों में बेचता हूँ। तो देखो, जब मैं घर पे नहीं हूँ ना, एक बात याद रखना कौसर बीबी, मुझे सफाई सुथराई और कायदे करीने की हर चीज बहुत अच्छी लगती है, तो तुम याद रखो घर को खूब अच्छा चलाना। क्या करोगे? घर को खूब अच्छे चलाओगे। हाँ, याद रखना। अच्छा, मुझे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, तुम ध्यान देना मेरी बातों का। और हाँ हाँ हाँ, याद आया भाई कौसर बीबी, ये तुम्हारा पहला दिन होगा जब तुम किचन संभालोगी, तो और लोग तो खीर बनवाते हैं, बिरयानी बनवाते हैं, मेरी पसंद का खाना तो है पाए। आपने किसी ने पाए खाए? बहुत मजे के होते हैं, खास तौर पे जिसमें मिर्च मसाले खूब होते हैं। तो उसकी समझ में तो नहीं आया, मगर वो सही जाके हाँ ठीक है मैं सब कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। तो भाई सौदागर तो चल पड़ा। और कौसर बीबी जो थी वो खूब मजे में घर घूम फिर के देख रही थी, उसकी सजावट, उसके पर्दे, उसके कालीन, उसके कुशन, और बहुत खुश हो रही थी। और बहुत ये भूल नहीं
वे सौदागर ने क्या क्या उनको ताकीद की थी, क्या क्या इंस्ट्रक्शन लेके गए थे। तो जब 3, 4, 5, 8 दिन गुजर गए, उसने कहा था मैं 10वें दिन आ जाऊंगा। तो उसने सोचा, हाय मैं तो भूल ही गई, सौदागर ने कहा था कि मेरे लिए पाए पकाना। पाए कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो कोई नौकर भी मुझे नहीं दिख रहा, कोई बंदा बचन नहीं है। मैं किससे कहूँ मुझे बाजार से पाए जाके दे। फिर इधर उधर नजर मारी तो देखा, पाए पाए, देखो कुर्सी के पाए, मेज के पाए, पलंग के पाए। पाए तो यहाँ बहुत है। उसने सही बात कही। जो खाने वाले पाए होते हैं उसके बदले वो समझी कि लकड़ी के पाए चाहिए हैं सौदागर। तो अब फिर सोचा, मगर ये तो ठुके हुए हैं मेज के साथ, कुर्सी के साथ, पलंग के साथ, मैं कैसे पाए पकाऊं? हाँ, अगर किसी चीज को, लकड़ी की चीज को काटना है तो हमें क्या चाहिए? Yes, you got it. तो उसने पड़ोस वाले घर में झांक के देखा दीवार पे से, तो वहाँ एक कारपेंटर का घर था, तरखान जिसे हम कहते हैं, या लकड़ी का काम करने वाला। तो बहुत शर्माती बोली, आपा जी, आपा बहन, मैं देख रही हूँ आपके यहाँ दीवार पे इतनी अच्छी चीजें डाली हुई है। एक हथौड़ी है, कुछ कीड़े हैं, एक पेचकश है और एक बड़ी सी आरी। हो, यही तो मुझे चाहिए। आप प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी आरी दे देना है। एंडी, तुम्हें क्या हुआ? अभी नई दुल्हन आई हो, ये आरी वारी का क्या काम है? अब बस है ना, आप बस इंतजार करिए, जब तैयारी हो जाएगी तो मैं आपके यहाँ भी थोड़े भेज दूंगी। पड़ोसन बहुत चकराई हुई, बहुत हैरान, ये नई दुल्हन आके आरी मांग रही। तो खैर आरी को बहुत खुशी ले आए और उसने देखा कि सबसे छोटे पाए कौन से हैं, वो आसान होने का। तो उसने पलंग के पाए काटना शुरू की और ये भी सोचा कि अगर मैं सिर्फ एक पाया काटूंगी तो 3 पाए पे तो खड़ा रहेगा पलंग, है ना? तो ये तो कोई नुकसान की बात ही, बहुत आसान है। तो इसने जो जाना आरी से पलंग का एक पाया काट दिया और फिर उसने नजर देखा कि हाँ, मेज के भी और कुर्सी के भी अच्छे हैं पाए, जरा लंबे हैं मगर बहुत नहीं। तो उसने भाई, और वो भी उसने कहा सिर्फ एक काटूंगी, क्योंकि 3 होंगे तो खड़ी तो रहेगी कुर्सी, है ना? तो उसने एक पाया चुन के और वो भी काट लिया और इतने काफी होंगे, बस 3 पाए। नहीं, मुझे पड़ोसन को भी बांटना है, देना है। तो उसने फिर सबसे बड़ा पाया तो मेज का है, चलो मेज का पाया मैं काटती हूँ। जल्दी से मेज का भी काट लिया और फिर उनके और छोटे टुकड़े किए और बड़ा सा पतीला ढूंढ के लाए किचन में से, पाए उसमें डाले और खूब पानी से भर दिया। सोचने लगी कि भाई लकड़ी के पाए हैं, इनको गलने में तो देर लगेगी ना, तो जितना पानी डालूंगी उतनी जल्दी ये गल जाएंगी ये पाए। तो उसने खूब भर के पानी डाला और सोचने लगी एक पाव में कुछ खुशबू तो आ ही रही है, मैं जाकर पड़ोसन से पूछती हूँ क्या क्या मसाले डालना चाहिए। तो भाई वो भाई दूसरी तरफ गई, वहाँ कौन रहता था? एक गधा गाड़ी वाला। उसने फिर शर्मा की और बहुत हिचकिचा से कहा,
आपा, बाजी, आप मुझे बताएं प्लीज कि पाए में कौन से मसाले डालना चाहिए। उन्होंने कहा नमक सफेद, मिर्ची लाल और हल्दी पीली। तो ये हाँ, ये तो मुझे दिख रही है, अलमारी पे रखी है, मैं उठा लाती हूँ। और वो सब उसने एक एक करके देगची के अंदर उड़ेल दी। और भाई खुशबू तो खूब अच्छी आ रही थी। तो वो चलाए गए। थोड़ी देर बाद जाके दबा के देखा, छू के देखा, ओ ये तो वैसे ही के वैसे सफर से गले ही नहीं। चलो थोड़ा एक डोंगा पानी और डाल देती हूँ, तब तो कर जाए। उसे डाला और खूब चलाया चमचे से। फिर जनाब दूर से उसने सुना कि वो गधे गाड़ी की आवाज आ रही है। अब मुझे मालूम है, याद आया कि सौदागर ने और एक चीज बहुत जोरों में कही थी कि मुझे करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि घर अच्छा चलाना है। घर को कैसे अच्छा चलाते? ये दीवार अच्छी है, इस पे चढ़ के बैठ जाती हूँ और मैं हाथ में चाबुक ले लेती हूँ और चल घर। उसने मारना शुरू किया। उधर से आ रहे सौदागर साहब, उन्होंने देखा है ये कैसी लड़की है, कैसी बीवी है, दीवार पे चढ़ के बैठी हुई है और चाबुक से घर को मार रही है। ये क्या इसकी सोच है, क्या इसको ख्याल है? चिल्ला के पूछा, सुगर बीवी तुम क्या कर रही हो? कौशल वहां से उतर के आओ, क्यों बैठी हो दीवार पे, क्यों चला रही हो चाबुक? उसने कहा साहब आप ही ने तो कहा था कि घर को अच्छा चलाना, तो फिर मैं चल गए। अरे भाई कैसी लड़की है, लगता है इसके माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया। और ये बात सच थी, है ना स्कूल भेजा ना घर पे कुछ सिखाया। तो उसने कहा फौरन उतरो, मुझे बहुत भूख लग रही है, बल्कि बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ इतना लंबा सफर करके, और तुम जल्दी मेरा खाना मेरे पाए गरम करो और निकालो मेज पे, मैं जब तक जरा सुस्ता लेता हूँ। तो वो भाई पलंग पे जाके बैठा। पलंग तो एक तरफ को छू ही गया। ये क्या है, ये कैसा पलंग है? उसने झुक के देखा, एक का पाया कम था। खैर उसने कहा काम चल जाएगा। वो चादर ओढ़ के लंबा लेट गया। इतनी देर में सुगर बीवी ने प्लेटों में, डोंगों में वो क्या निकाल के रखा? लकड़ी के टुकड़े। और जहाँ उसकी बैठने की कुर्सी थी उसके आगे वो मजे में सजा दिए, झिलमिल करते चमचे कांटे रखे। तो वो भी जरा मुंह हाथ धोके फ्रेश होके आके कुर्सी पे बैठा। कुर्सी गई। एक और धक्का लगा उसे, एक और धक्का लगा और फिर गिरने लगा। क्या है आज के, तो कुछ अजीब, किसी ने कुछ जादू कर दिया है मेरे घर पे, क्या बात है? जहाँ जाके बैठता हूँ, जहाँ जाके लेटता हूँ, धड़ पीछे हो जाती और गिरने लगता हूँ। चलो छोड़ो सुगर बीवी, भूख बहुत लग रही मुझे, जल्दी से मुझे पाए दो। तो गई, बड़े चमचे से लकड़ी के टुकड़े निकाल के उसने डोंगे में डाले और खड़ा हुआ टेबल के पास और एक टुकड़ा लेके उसके तो दांत टूटने वाले थे। तो जल्दी से थूक दिया और जल्दी से जाके टेबल पे बैठा और उस पे कोनी टेकी तो सारी प्लेटें, चमचे, कांटे टेबल पे से फिसल के और फर्श के ऊपर ढेर लग गया। तो उसने कहा भाई हद हो गई ना, मैं ये अनपढ़ जाहिल बीवी लाता और ना मेरे साथ ये अजीब से वाक़े होते। खैर
अब ये करेंगे, शुगर बीबी, तुम बिल्कुल शुगर बीबी तो नहीं हो, तुम तो भूअड़ बेबी हो। तो मैं डोली मंगा के तुम्हें वापस भेजता हूँ तुम्हारी अम्मा के पास, अब्बा के पास, और तुम्हारी अम्मा से कहूँगा जब तक ये सारी चीज़ें बनाना सीख नहीं गए, मेरी पसंद की चीज़ें और अपनी पसंद की चीज़ें, तो जब आ जाएगी तब मैं उसे लेने आऊँगा। ऐसे जाहिल और अनपढ़ और भूअड़ बीवी को मैं तो नहीं अपने घर में जाऊँगा, ये तो नहीं चलेगा। आपने क्योंकि खूबसूरत है और क्योंकि आपके पास पैसे बहुत हैं, आपने मुझे ये अनपढ़ जाहिल बीवी थमा दी, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए, आप अपने घर में रख लीजिए। जब इसको सही सही खाना बनाना आ जाएगा तब मैं इसको आके ले जाऊंगा। तो ये तो थी शुगर बीबी की कहानी। और अगर आप ये किताब खरीदेंगी जिसका नाम है अन्ना बुआ की कहानी, अन्ना बुआ जो थी बच्चों, तुम्हें हैरत होगी, वो मेरे अब्बा की अन्ना थी। उस जमाने में अन्ना कहते थे आया को या मेट को। या तो वो हमें सुनाती थी बचपन में ये अन्ना बुआ की कहानियाँ। और मजे की बात है कि ये हमारे मुल्क की हैं, हमारी ज़बान में है, हमारे घर के हस्ती रहने सहने के बारे में है। तो जब हम कभी बाहर जाएं और हमें दावत दी जाए कि प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट योर कंट्री एंड योर कल्चर एंड द थिंग्स यू डू, we'd love to know more about Pakistan. So what do you think you would do? Would you tell them a story like this? See, the clothes are all Pakistani, the house is Pakistani, बहुत तकिए लगे हुए हैं, तखत बिछा हुआ है, और ये सब मजे मजे की पाकिस्तानी कहानियाँ। तो बताइए, आप खरीदना पसंद करेंगे? तो ये आप जब बाहर जाने लगेंगे तो मेरे ख्याल में टेबल पे इन्होंने रखी हुई हैं, आप वहाँ से ले सकती हैं, या फिर आप ईमेल ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल तो हर चीज़ का मशीनों का एज है, हर चीज़ मशीनें कर लेती हैं। जो इंसानों को काम करना चाहिए कि भाई अपनी गाड़ी में बैठे और चल के सदर बाजार जाए, बोरी बाजार जाए, तो आपके घर ही पे चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर आप ईमेल से ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी तरक्की हुई है सारी दुनिया में, और इससे भी आगे बढ़ेगी हमारी इजाद और हमारी चीज़ें, तो हमारा मुल्क और भी एडवांस कहलाएगा। अच्छा, अब हमें आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपने शायद बचपन में अपनी नानी या दादी या अम्मा से सुनी होगी, और उसका नाम है पोदना और पोदनी की कहानी। पोदना कहते हैं चिड़े को, चिड़े को, और पोदनी कहते हैं चिड़िया को। तो ये उनकी कहानी है। भाई एक पोदना था और एक पोदनी थी, और उनका घर ऊंचे दरख्त पे घोंसले में था। पानी ढूंढते थे, तो एक दिन चिड़िया को मिला दाल का दाना और चिड़िया को मिला चावल का दाना। सुनेंगे कहानी? मगर आगे देखिए क्या होता है। तो जब घर आए तो दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। अब भाई चिड़िया बड़ी चढ़ाती, उसने कहा ओ मियाँ चिड़े इसमें नमक तो है ही नहीं, बाहर नमक की फीकी खिचड़ी कौन खाएगा, जाओ नमक लेके आओ बाजार से। तो बेचारा फुट उड़ता हुआ फिरता हुआ पहुंचा और नमक खरीदा। उतनी देर में
चिड़िया ने क्या किया, बोधनी ने, उसको बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी खिचड़ी की, बहुत भूख लग रही थी, तो उसने चमचा चला चला के एक चमचा बस चख लूंगी, ये मजे का लगा, 2 चमचा 3 चमचा खाते खाते पूरी पानी खाली कर दी। अरे याद आया, चिड़िया भी तो गूंगा होगा, वो तो आते ही खिचड़ी खाने को मांगेगा, तो मैं कहाँ से दूंगी, देखते तो खाली हो गए। तो बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया, उसने एक लंबी सी चारपाई बिछाई और आंखों पे पट्टी बांध ली और दरवाजे की खिड़की अंदर से बंद कर दी और जाके पलंग पे लेट के चादर खींच के लेके सोने लगी। उधर से आया चिड़िया, उसने देखा दरवाजा बंद, उसने खटखटाया, चिड़िया दरवाजा खोलो। चिड़िया ने कहा भाग जाओ यहाँ से, मेरे हाथ में दर्द होता है, मैं नहीं खोलती। ओहो, चिड़िया बहुत उदास हुआ, ये क्या किया चिड़िया ने, खुद अंदर है और मैं बाहर हूँ, दरवाजा बंद। तो उसने इधर उधर देखा तो नीचे से राजा साहब के कुछ सिपाही गुजर रहे थे और बड़ी अच्छी तरह मार्चिंग कर रहे थे। क्या कह रहे थे, लेफ्ट राइट, बोले लेफ्ट राइट, कुर्ता ढीला टोपी टाइट, लेफ्ट राइट, कुर्ता ढीला टोपी टाइट। ओहो, चिट्टे ने कहा ये मेरी मदद करेंगे, ये बहुत बहादुर है, होशियार है। उसने आवाज दी, मेरा सिपाही जरा आके मेरा दरवाजा खोल दे, छोटा सा दरवाजा है और आप तो इतने ताकतवर हैं, आपके पास इतने अच्छे हथियार हैं, जरा सा धक्का दे दे, मेरा दरवाजा खुल जाएगा। तो सिपाही क्या बोलने लगे, अरे वाह, क्या कह रहे हो चिट्टे मियाँ, हमें तो राजा के महल जाना है, वरना वो न सिर्फ हमें नौकरी से निकाल देगा, हमें तनख्वाह भी नहीं देगा, फिर हम भूखे मरेंगे। हम नहीं करते तुम्हारे दरवाजे छूने का काम। वो चले गए, क्या बोले, लेफ्ट राइट, कुर्ता ढीला टोपी टाइट, लेफ्ट राइट, कुर्ता ढीला टोपी। वो चले गए। अब भाई उनके पीछे पीछे आए राजा के घोड़े, तो फिर उसने कहा चिड़िया ने, अरे घोड़े साहब, घुड़सवार, आप जरा मेरी खिदमत कर दीजिए, जरा सी मेरा छोटा सा काम है वो कर दीजिए। हमने दूसरे मरे की खिचड़ी बनाई थी और वो मैं तो इतना भूखा हो रहा था, मैं तो चाहता हूँ अभी अंदर जाके खिचड़ी खा लूँ, मगर दरवाजा तो बंद है। और चिड़िया क्या कह रही है, भाग जाओ यहाँ से, मेरी आंखें दुखती हैं, मैं नहीं खोलती दरवाजा। वो बहुत परेशान। फिर उसने देखा कि टन 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 टन, आपके ख्याल में कौन आ रहा था, एक बड़ा सा जानवर है जिसकी बड़ी सी सूंड होती है और गले में बांधी होती है टन टन घंटी। तो उसने हाथी से कहा, हाथी मियाँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ, आप जब चिड़ियाघर में बंद होते हैं तो मैं आपको ला के देता हूँ चने के दाने और भुट्टे के दाने और फल और मजे की चीजें, आप तो जरूर मेरी मदद करिए। बहुत हंसा हाथी। चिड़िया, ये भी कोई मुश्किल काम है। उसने जाके जनाब एक लात मारी और घोंसले का दरवाजा खुल गया। वो थैंक यू मियाँ, हाथी साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आप तो खिचड़ी खा रहे मेरे साथ। अरे नहीं, मेरे तो रिपोर्ट करने का टाइम हो गया, मैं नहीं रुक सकता किसी खाने पीने के लिए, मैं जा रहा हूँ। टन 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 टन।
थैंक यू खुदा हाफिज। और चिड़िया अंदर आया तो देखा, क्या देखा, बिस्तर पे लंबी सी चिड़िया लेटी है और आंखों में पट्टी बनी है और मुंह पे चादर डाल रखी है। और जब चिड़िया आया खाना लेने के लिए, उसने कहा ओ बेटी तो खाली है। अरे भी चिड़िया, ये तुम सब खा गए खिचड़ी, ये तुमने क्या किया? मुझे देखते नहीं हो, मेरी आंखें दुखती हैं, मैं क्यों खाती तुम्हारा खाना? तो बहुत बहस हुई। आखिर चिड़िया ने कहा अच्छा भी चिड़िया, तुम यूं नहीं मांगो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। और इम्तिहान ये था कि बीच जंगल में था एक अंधा कुआं। अंधा कुआं वो होता है जिसमें पानी नहीं होता, ठीक है। और उसके ऊपर उसने एक बना हुआ था एक झूला, कच्चे धागे का झूला। उसका मतलब यही था कि अगर कोई झूठ बोल रहा है या गलत बात कह रहा है तो उसका इम्तिहान लेना। तो मैंने यही कहा, तो कहा कि चिड़िया तुम बैठो झूले पे और मैं पीछे से धक्का दूंगा, और अगर तुम बाहर चली गई तुम सच बोल रही हो, और अगर तुम कुएं में गिर गई तुम झूठ बोल रही हो। तो यही हुआ, उसने एक जोर का धक्का मारा और चिड़िया बेचारी तुरंत से अंदर गिर गई। मगर चिड़िया रोई नहीं, घबराई नहीं, वो तो अंदर कह रही मैं अंधे कुएं में। इसको तो कोई हम नहीं है, कोई हम नहीं है, कैसी चिड़िया है? चलो मैं उसे उठा के कांटों की झाड़ी में फेंक देता हूँ। तो चिड़िया घबराई नहीं, रोई नहीं, बिल्कुल जरा सा डरी नहीं, कहनी मैंने चांदी के जेवर पहने, मैंने चांदी के जेवर पहने। वो कांटों को जेवर सब कह रही थी। तो चिड़िया ने कहा ये नहीं मानेगी ऐसे। उसने उठा के चिड़िया को जो राजा साहब का बावर्ची खाना था उस पे जाकर फेंक दिया कि वहाँ चूल्हा जल रहा है और लपटें आ रही हैं आग की, ये जल भुन के वहाँ ऐसा परेशान होगी कि ये सारी बात उगल देगी और सच बता देगी कि हाँ मैंने ही खाना खाया। तो जनाब जब वो किचन में जाके पड़ी तो वो गिर गई धड़ाम से नीचे वाले देखने। तो वो नहीं घबराई, वो नहीं पछताई, वो कह रही मेरे लाल लाल कपड़े राजा से भी अच्छे, लाल लाल कपड़े। वो राजा साहब ने सुना और उन्होंने कहा भाई ये कौन है जो कह रहा है कि मेरे कपड़े राजा से भी अच्छे। अपने सिपाहियों से कहा जाओ पकड़ के लाओ इस गुस्ताख को, इस इतराने वाली चिड़िया को कह रही है कि मेरे कपड़े राजा से अच्छे। तो भाई सिपाही गए और चिड़िया को जाके हल्दी के तेल में डाल दिया। वहाँ कह रही मेरे पीले पीले कपड़े राजा से भी अच्छे, मेरे पीले पीले कपड़े। राजा ने कहा देखो उस जो भी इस देशी में है चिड़िया या कोई, तो लाके एक बड़े से प्लेट में रख के और मुझे लाके दो टेबल में, मैं उसे कच्चे ही चबा जाऊंगा, मैं उसे चबा के खा जाऊंगा। तो भाई डॉक्टरों ने यही किया, एक बड़े से थाल में वो चिड़िया को बिठाया और उसके ऊपर ढकना रख के और लाके टेबल पे रख दिया। तो अब भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, लाल मिर्ची और हल्दी की और नमक की। तो उनके वजीर आए और चुपके से कान में कहा राजा साहब मुझे लगता है कि इसमें जो चिड़िया बंद है वो बहुत चालाक है,
वो ऐसे नहीं आपका पीछा छोड़ेगी। मैं चुपके से ढक्कन उठाता हूँ और जैसे ही ये प्लेट में से उड़ने लगे, आप जल्दी से अपनी तलवार घुमा के और खटाक से उसकी चोंच उड़ा देना। देखेंगे कैसे कह दिया। तैयार है आप? तलवार है आपके हाथ में। अब मैं ढकना उठा रहा हूँ। जैसे ही नौकर ने ढकना उठाया तो राजा जी ने सलाम करके जो तलवार मारी तो राजा की अपनी नाक कट गई। और चिड़िया तो बच गई। चिड़िया तो खुशी जाके चिट्टे से मिली और कहने लगी, चिट्टे साहब चलो अब तो दोस्ती कर लो, मैंने इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं तुम्हारे लिए, चलो घर चलते हैं, मजे से खाएंगे, खाना खाएंगे। तो चिड़िया ने कहा, वो कह रही हो खाना खाएंगे? अच्छा कहा, खिचड़ी खाएंगे। अरे वो तो हंडिया खाली है, उसमें तो कोई भी नहीं। चिड़िया कह रही है कोई नहीं, बात कोई बात नहीं, चलो हम लोग KFC में जाके बर्गर खा लेंगे, वो मैकडॉनल्ड में जाके सैंडविच खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, कोई बात नहीं है। खत्म हो गई तो भाई वो मजे मजे गाने बजाते अपने घर को चले गए और जाते जाते गाना भी गाने लगे कि आपने देखा ना, जब किसी से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और जब जाने लगते हैं तब भी अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए मेरा साथ दीजिए आप और सब मिलके गाइए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हम तो करेंगे अच्छे अच्छे काम, हम तो करेंगे अच्छे अच्छे काम। आपसे सवाल है हाउ आर यू, आपसे सवाल है हाउ आर यू, आपका जवाब है फाइन थैंक यू। मजा आया ये छोटी छोटी दो कहानियाँ सुन के। तो आप भी अपने घर जाके और बच्चों को सुनाएगा। और उससे भी अच्छा है कि ये किताब ले जाए तो इसमें तो पूरी 10 कहानियाँ हैं। हाँ, एंट्रेंस पे आपको मिलेंगी और आप खुद पढ़िए, अपने बच्चों को सुनाइए और ताकि ये जान सके कि पुराने ज़माने से हम कैसे थे और कहाँ रहते थे। और सोचिए उस वक्त के जब तलवारें चलती थी और घोड़ा सवारी होती थी, अब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, मशीनें चलाते हैं, मोटरें चलाते हैं और ये हमारी मुल्क की खूबी है। So give a hand to Pakistan. 3 cheers for Pakistan. Another cheer for Pakistan. In the book, don't forget, अन्ना बुआ की कहानियाँ हमारी आपकी इसके लगे फिर मुलाकात होगी, बार मुलाकात होगी, इतने मजे की कहानी। थैंक यू, बाय। La din din da, din din da, dina di dina, dina di dina, din din dina, dina katta da dina, din din da, din din da, dina katta din da dina.